So, hello everyone, it's class 9th and we are doing that chapter India size and location, geography, right? So that was the first chapter of geography and we already started that chapter. ठीक है ना? Basically what we completed in that chapter, we already read about the sizes of India. जो लोग नए हो, you can go to Fusis Champs, our official YouTube channel. आप वहाँ पे वीडियो अपलोडेड है क्लास 9th के सेक्शन में. You can go and see that video. Exactly you will get the same what we did in the class because class recorded video ही हमारी होती हैं. It was a live recorded video. ठीक. So those who are new they can go and watch over there. पहली बात, हालांकि from 2nd और 3rd of the April session will restart, है ना? And that will be a permanent start. So no फिकर. Those मतलब for those जिनको लगता है कि भैया छूट गया, कुछ नहीं छूटा है बिकॉज कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा मान लिया जाए, है ना? चलिए. सो बेसिकली व्हाट वी डिड इन दैट चैप्टर, साइज कंप्लीट हो गया था. वी जस्ट अंडरस्टैंड लोकेशन. इट मीन्स लैटिट्यूड एंड अबाउट लॉन्गिट्यूड वी अंडरस्टैंड इट. वी ऑलरेडी डिड दिस टॉपिक दैट व्हाट इज एग्जैक्टली हाउ 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट. ये भी क्लियर कर लिया था दैट 1 लॉन्गिट्यूडनल डिग्री हाउ इट इज इक्वल्स टू 4 मिनट. मैंने आपको ये समझा भी दिया था. ठीक. इसके बाद जो हम लोगों ने कर लिया था वो ये कर लिया था दैट y 82.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, है ना? ये भी हम लोगों ने कर लिया था. मैंने आपको ये भी बता दिया था मे बी दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम मेरिडियन. इफ नॉट लेट मी रिमाइंड यू वंस मोर टाइम. ठीक है, चलो देखो, ध्यान दो. सपोज दिस इज द ग्लोब, है ना? आज तो बाहर जाके मैम से एक मार्कर ले आई तो ब्लैक. सपोज दिस इज द ग्लोब, ठीक है, एंड वी जस्ट ड्रॉन अ लाइन. This line is called vertical. It's an imaginary line drawn vertically from north to south. ठीक. Already we understand this कि this kind of, आ जाओ, खोल के रखो. ब्लैक बोले थे, ग्रीन ले आया. ठीक है, sit down. So I just already told you that, उसको ओपन कर दो. I just already told you that this kind of vertical line which drawn over the globe from north to south will called longitude. What? Longitude. Is it okay? ये clear है, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, this longitudinal line divides the whole globe into eastern hemisphere and western hemisphere. अच्छा, this is the line which we call the 0 degree longitude. What? 0 degree longitude, and this 0 degree longitude passes from London's Greenwich. So this is the line which passes from London's Greenwich, basically called prime meridian. And if you will have a short form, बहुत ध्यान से देखना, आपको आज पता चल जाएगा कि from where the AM and PM comes. If you will go with the short form, this is called PM. So what is the PM? जो हम लोग 12 hours clock में यूज करते हैं, 12 बजे दोपहर के बाद से लेके रात के 11:59 यानी कि 11:59 तक का हम लोग लिखते हैं PM. Right now what is the time? So if I am not wrong, it's 6:47. So we will write 6:47 PM. So that what is the full form of that PM? Prime meridian. And if someone asks you then what is the full form of AM? Anti-meridian, है ना? मतलब अब देखो इसका मतलब समझो. What is prime meridian and what is anti-meridian? Prime यानी कि towards the meridian, towards the 0 degree meridian. If you will travel, समझो, if you will travel, है ना, towards, if you will travel towards this meridian, you will call anti-meridian. AM you will call anti-meridian. मतलब आप जब इस 0 डिग्री मेरिडियन की तरफ बढ़ेंगे सो आप AM में जा रहे हो. ठीक है,
and when you will travel against it, like before, just go ahead from it. You are traveling in PM, what? Prime meridian. Clear हो गई बात? What is the AM and PM का लोचा is clear? ये जो माया जाल था ये क्लियर हो गया, गोगिया सरकार का माया जाल खत्म। अब बात करते हैं, अब कुछ धमाकेदार करते हैं, बेमिसाल करते हैं, है ना, कुछ भौकाल करते हैं, है ना। चलो अब मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, फाइंड आउट व्हाट इज द लोकल टाइम या करंट टाइम ऑफ सऊदी अरब, है ना, या सऊदी अरब नहीं लेते, ईरान ले लेते हैं, ईरान, विच इज ऑन। भैया देखिए ईरान का स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है भाई, कितना है, लेट्स सी, नेट ऑन करने दो, इज ऑन कितना मैसेज आता है, ओह कहाँ गया, फिफ्टी 2.5 डिग्रीज, ठीक है, इज ऑन 52 डिग्री 5 मिनट, 52.5 डिग्री ईस्ट, ठीक। चलो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ताकि आपको मैं एग्जैक्ट टाइम बता सकूं, इसलिए मैंने वहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं लिया, जो एग्जैक्ट ईरान का स्टैंडर्ड मेरिडियन है वही लिखा, है ना, ताकि परफेक्ट टाइम निकाला जा सके। चलिए क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट व्हाट इज द लोकल टाइम या करंट टाइम ऑफ ईरान विच इज ऑन 52.5 डिग्री ईस्ट। आपको क्या बताना है कि अभी ईरान में कितना बज रहा होगा। क्या तुम में से कोई बता सकता है कि अभी ईरान में कितना बज रहा होगा? क्या ये पॉसिबल है अभी कि अभी बताना ईरान में अभी कितना बज रहा होगा, या क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। देखिए कैसे पॉसिबल है, समझते हैं। इट्स अ प्योरली अ मैथ, यू आर रीडिंग ज्योग्राफी बट इट्स अ मैथ। बहुत ध्यान से देखना और समझना। वी आर डीलिंग विद द लोकेशन टॉपिक। चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, दिया क्या है? दिया है क्वेश्चन में ईरान का स्टैंडर्ड मेरिडियन विच इज 52.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है ना। व्हाट यू नो, नोन टू ऑल, हम लोग क्या जानते हैं? हम जानते हैं इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन, आपको पता है ना, विच इज 82.5, मतलब 82.5 लिख सकते हैं डिग्री ईस्ट, है ना। ये हमें मालूम है, ये तो पूरे भारतवासी को मालूम है। अच्छा, दूसरा हमें क्या मालूम है? इंडियाज लोकल टाइम, क्या भारत में कितना समय बज रहा है ये आपको मालूम है या नहीं? मालूम है। कितना बज रहा है भाई? 6:52। अगर मैं इस 6:52 को 6:50 PM लिख दूं तो कोई दिक्कत? चलेगा? चलेगा, बहुत बढ़िया। अगर मैं इस 6:50 को इफ आई विल राइट 1815 आवर्स, कैन आई राइट दिस? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? नहीं कि हाँ? अच्छा हाँ, ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं 1850 घंटा। जिन्होंने पहली 2 क्लासें नहीं की हैं, शायद आपको कुछ लगे कि क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है मज़ेदार हो रहा है ना। एंजॉय कीजिए, चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है, कुछ नया सीख के जाओगे। चलो, सो ये 3 बातें मालूम हो गई, एक जो क्वेश्चन में था, एक जो हमें पता था, एक जो हमने अभी देख लिया कि भारत में अभी 6:50 यानी कि 1815 आवर्स हो रहा है। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द डिफरेंस इन
स्टैंडर्ड मेरिडियंस, दोनों देशों के स्टैंडर्ड मेरिडियन का डिफरेंस निकालना है। तो 82.5 माइनस 52.5 कितना आएगा भाई? 30 डिग्री होगा। बोल लो, हमको मैथ कम आता है तो बोल लो हाँ या ना। चलिए बहुत बढ़िया। जब ये 30 डिग्री स्टैंडर्ड मेरिडियन निकल गया बाबू, तो क्या हम दोनों देशों के बीच का टाइम गैप निकाल सकते हैं? कैसे निकलेगा टाइम गैप? दोनों देशों का स्टैंडर्ड मेरिडियन का गैप कितना? 30 डिग्री। 1 डिग्री बराबर क्या मिनट? 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 4 मिनट। तो दोनों देशों का गैप निकालने के लिए अगर मैं 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 120 मिनट हो जाएगा या नहीं? अगर ऐसा होगा तो कुछ गलत होगा क्या? पाप चढ़ेगा क्या? नहीं ना चढ़ेगा। यहां तक का मैथ समझ में आया? अभी तक हमने क्या क्या किया ध्यान दीजिए। पहली बात जो आपको जाननी थी, दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। जो नए बच्चे हैं या जो पुराने क्लास के वीडियोस को नहीं देखे हैं, समझिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट क्यों होता है वो भी जल्दी से बता देता हूं 1 मिनट के अंदर। सपोज दिस इज अर्थ, दिस इज अर्थ, सो अर्थ इज जस्ट रोटेटिंग ओवर इट्स एक्सिस। अर्थ इज हैविंग 2 टाइप ऑफ मूवमेंट, one is rotation, second one is revolution. Rotation means moving of earth on its own axis. Rotation of earth on its own axis, it's called rotation. Similarly, revolution of earth means moving of earth on over its own orbit, that is called revolution, right? चलिए, तो भैया रोटेट करती है अर्थ अपने एक्सिस पे कितने देर में और कितना रोटेट करती है? जब एक गोला लगाने का मतलब, एक चक्कर लगाने का मतलब 360 डिग्री घूम रही है, बिकॉज इट्स इन अ सर्कुलर फॉर्म। हाउ मच टाइम इट टेकिंग? 24 आवर्स। कैन वी राइट 360 डिग्री इक्वल टू 1440 मिनट? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? 24 इंटू 60 मिनट, घंटे को मिनट में बदल दिए, इतना आएगा। आएगा क्या हम इसको 1 डिग्री बराबर 1440 बटा 360 कर सकते हैं? कर सकते हैं। भगवान जी पाप नहीं देंगे ना? कोई गलती नहीं। बहुत बढ़िया। जब काट दोगे तो 4 आ जाएगा। तो भैया हैंस प्रूव्ड कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। बहुत बढ़िया। तो यहां हमने क्या किया? ईरान का स्टैंडर्ड मेरिडियन लिखा, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन लिखा, भारत का अभी का लोकल टाइम लिखा, उसको 24 आवर्स में बदल दिया। बदलने के बाद स्टैंडर्ड मेरिडियन लिखा, कहाँ का? दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला तो 30 डिग्री का डिफरेंस आया। ठीक, अब हमने क्या किया? इस डिफरेंस को टाइम में कन्वर्ट कर दिया तो 120 मिनट का डिफरेंस आया। कितने देर का डिफरेंस आया? 120। अगर मैं इसको 2 घंटा लिख दूं तो कोई दिक्कत? अगर मैं 120 मिनट को 2 आवर्स लिखूं तो डू एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया। अब असली खेल शुरू हो रहा है। क्या क्या मालूम चल गया कि भैया भारत और ईरान के बीच में 2 घंटे का टाइम गैप है। ठीक, मुद्दा क्या है कि ये गैप वहाँ समय हमसे कम होगा या ज़्यादा होगा? मतलब ईरान का लोकल टाइम निकालने के लिए हम लोग, जो इंडिया का लोकल टाइम है 1850, इस 1850 आवर्स में 2 घंटा यानी कि 2 आवर्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें? ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें? समझो कि क्यों सब्ट्रैक्ट करना और क्यों ऐड करना है। देखो, दिस इज द 0 डिग्री। ठीक, इंडिया इज हियर 82.5, है ना? जब 0 से आप ट्रैवल करेंगे तो 52 पहले आएगा या 82 पहले आएगा? 52 पहले आएगा ना। तो इसका मतलब हमसे इधर चलना है, बैक चलना है।
इनसे इधर चलनी है। तो ये फॉर्मूला याद रखो कि whenever we go left मतलब towards the 0 degree, towards the western hemisphere, time reduces. And when we go east towards the eastern hemisphere, like right hand, time increases. याद रखना हमेशा कि जब भी आप ग्लोब के सामने खड़े हैं, if you want to go left, time कमेगा. If you want to go right, time बढ़ेगा. Is it okay? यहाँ तक क्लियर हो गई? तो यहाँ मतलब क्या निकल के आया कि टाइम हमारा यहाँ पे क्या करना होगा? माइनस करना होगा. बहुत बढ़िया, माइनस कर देंगे. तो 0, 50, 16 बज के 50 यानी कि 4:50. कितना बज रहा होगा? 4:50, 4:50 PM, है ना. अब थोड़ा देखते हैं कि कितना सही है और कितना गलत है ना. तो अब वही ऑलमोस्ट. व्हाट इज द करंट टाइम ऑफ ईरान? The time in Iran is 5:59 PM. बताओ, ये तो 5:59, 6 बजा दिया ईरान. कहे जी? नहीं, सही है. देखो GMT के हिसाब से इट्स +4:30 यानी कि ओवरऑल 5 GMT के हिसाब से ना. तो ये कैलकुलेशन है. इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में टाइम कैलकुलेट होता है. बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड मेरिडियन इट विल बी कैलकुलेटेड. क्लियर हो गई बात? मैथ्स को जल्दी से कॉपी कीजिए और एक क्वेश्चन में दूंगा, उसको बनाइएगा. ठीक है, चलो फटाफट. So guys, we have a doubt over here, and the doubt is that India, you all know, like we have a difference starting from India, and if you will go to Greenwich, so we have a difference of 5 hours 30 minutes. So we have a doubt, we have a query from the student side that how this calculation came out, like why we believe that from India to Greenwich we have this much difference only. इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. तो इसको चलिए प्रूफ करते हैं. ओके, सो व्हाट वी नो अगेन, फिर से वही बात कि हमें क्या पता है. वी नो द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया एंड दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट, राइट. दूसरा क्या पता है? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच. This is also we know, and this is what? This is 0 degree. What? 0 degree. Clear? अब हमें क्या करना है? We have to find out what? We have to go through with the difference. तो difference between the meridians. इन दोनों meridians के बीच में कितना का difference है? तो 82.5 माइनस 0 डिग्री कितना आएगा आंसर? 82.5 का हाफ ही आएगा ना. कोई दिक्कत नहीं. अब हमें क्या निकालना है? टाइम गैप. दोनों के बीच में कितने का टाइम गैप है? दिस इज ओनली योर आंसर, जो हम निकालने जा रहे हैं. एज आई ऑलरेडी शोन यू दैट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट, एंड हाउ दिस ऑल आई बिलीव नाउ नो, है ना. सो you have to also do the multiplication. When you will do this multiplication, what you will get? 4 2s are 8, 8 4s are 32, 328 minute plus this is the half degree. अगर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट तो हाफ डिग्री बराबर 2 मिनट. ठीक है, this will come 330 minutes, and when you will divide this, or you just change it, so it will come 5 hours 30 minutes. ठीक है, so this will be your answer, and that is only your query. So how this gap we have, like because of this we have. Clear? Done? चलो अब एक क्वेश्चन सबने कॉपी कर लिया. चलो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट से उस क्वेश्चन को बनाइए. क्वेश्चन क्या है आपका? जल्दी से. एंड जो लोग वीडियो देख रहे हो
आप लोग आंसर कमेंट कर देना, ठीक है। चलो तो भैया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द लोकल टाइम, फाइंड आउट द लोकल टाइम ऑफ इराक, नहीं अभी क्या, हाँ इराक whose standard meridian is 48 डिग्री ईस्ट। आपको इराक का लोकल टाइम बताना है कि अभी इराक में कितना बज रहा होगा, जो कि इराक 48 डिग्री ईस्ट में सिचुएटेड है। समझ गए बात आप, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग सब एक कॉमन टाइम ले लेना भारत का, विच इज 7:10, 7:10। ये कॉमन टाइम ले लेना भारत के लिए, ताकि सबका आंसर एक जैसा आए। एंड इफ आंसर फ्लक्चुएट्स वी विल इजीली अंडरस्टैंड दैट कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना, वो CID वाला कुछ तो गड़बड़ है दया। सो दिस इज वो गोइंग टू बी हैपन। चलिए जल्दी से फाइंड आउट कीजिए, आई एम कमिंग इन जस्ट 1 मिनट। ओके गाइस, सो ठीक, देखो हम गिर जाए चलेगा, फोन नहीं गिरना चाहिए। नहीं हम आ जाएंगे, चलो तो लेट्स डू इट। तो भाई सॉल्व करते हैं इसको। व्हाट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज गिवन हियर, इराक स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इराक, इट इज गिवन हियर 48 डिग्री ईस्ट, ठीक है भाई। द सेकेंड थिंग विच इज गिवन हियर, it is about India. We all know standard meridian of India is 82.5 degree east, ठीक है। अब अगर बात करें इन दोनों के बलाग, तो लोकल टाइम ले लेते हैं। इंडिया का लोकल टाइम मैंने कहा था आपको कि अज्यूम कर लो 7:10 PM, मीन्स दैट इज 1510 आवर्स, राइट। इट्स अ रेलवे टाइम, 24 आवर्स रेलवे टाइम, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। Now, first of all, we will try to find out the difference between the meridians. So, longitudinal gap या meridian gap, difference between meridian, जो बोलो सब सही है। क्या है दोनों के बीच, 82.5 माइनस 48 डिग्री, कितना आएगा भाई, 12 में से 8 जाएगा तो 4 एंड 7 में से 4 जाएगा 34.5। 34.5 विल बी द डिफरेंस। चलो दोनों का टाइम गैप निकाल लेते हैं। द टाइम गैप विल बी 34.5 into 4 minutes. It will be 16 and 12 and 13, 136 plus 2 minutes. It will be 138 minutes. अब इसको कन्वर्ट करते हैं, it become 2 hours 18 minutes. 2 hours 18 minutes. This is the time gap. ठीक, चलिए हमसे पीछे है इंडिया, मतलब सॉरी इराक हमसे पीछे है, सो वी हैव टू माइनस इट, मीन्स सब्ट्रैक्ट इट। सो लोकल टाइम ऑफ इराक, लोकल टाइम ऑफ इराक विल बी, कितना बज रहा है भाई, 15:10 में से 2 hours 18 minutes को माइनस करेंगे। अब बहुत ध्यान से सुनो, ये जो मैथमेटिक्स है, दिस मैथमेटिक्स इज नॉट लाइक द नॉर्मल मैथमेटिक्स। इसमें जब आप कैरी लेते हो तो 10 कैरी नहीं होता, इसमें जब आप कैरी लेते हो 60 कैरी होता है, क्योंकि यहां आप 1 मिनट कैरी ले रहे हो तो प्रॉपर वे में 60 सेकेंड कैरी ले रहे हो। सिमिलरली व्हेन यू आर टेकिंग द कैरी ऑफ आवर फ्रॉम मिनट, सो यू आर टेकिंग अ कैरी ऑफ होल, ठीक। तो 15:10 जब कैरी होगा तो ये 0 है, इसमें से क्या जाएगा 8, तो यहाँ 2 बचेगा, 2 मिनट, ये क्या बन गया 0, ठीक। फिर ये जब 0 कैरी होगा यहाँ पे, ये क्या बनेगा, नॉर्मली कर लेते हैं पहले, ये क्या बन जाएगा 9, यहाँ पे 0 में से गया तो यहाँ 9 आएगा, ठीक है, 9 होगा ना जी। नॉर्मल की तरह करेंगे तो यहाँ 9 ही आना चाहिए ना। चलो
अब ये क्या 4 है, 4 में से 2 जाएगा तो 2, सही चल रहा है अभी तक, और ये 1 का 1, मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन करते तो 1292 आता। लेकिन जरा मुझे बताइए कि क्या ऐसा दुनिया का कोई घड़ी है जहाँ पे 12:92 हो, 1292 आवर्स आ जाए? नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, 1292 रखेंगे, 1 सेकेंड, 1292 रखेंगे प्लस इस 92 में से हम लोग एक ही चीज़ गड़बड़ कर रहे हैं उस समय से, 12 7 19 होता है, तो कोई नहीं बोला उस समय से हमको 1900 आवर्स होगा। हम अभी मेरे को दिमाग में अचानक स्ट्राइक किया कि वहाँ 3 कैसे बच सकता है। चलो कोई बात नहीं, अपना कैलकुलेशन सही है, 2 घंटा बढ़ा देंगे, ठीक है, कैलकुलेशन सही कर रहे हैं हम, सिर्फ कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा इसमें। ये 5:10 का हिसाब से हम लोग निकाल दिए, है ना। गलती मुझसे हो गई है कि मैंने 5:10 के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन कर दिया। वही मैं बोलूँ कि यार 3:10 के हिसाब से ही पूरा कैलकुलेशन हम कर दिए हैं गलती से। चलिए कोई बात नहीं, 1292, इस 92 में से 92 में से 60 इधर भेजेंगे, 32 को सिर्फ रख लेंगे, तो ये बन जाएगा 13, तो 1332 यानी कि 1:32। मतलब सिंपल भाषा में, चूंकि मुझसे गलती हो गई और हम 4 घंटा पहले आ गए, हमें यहाँ निकालना था 7 बजे के हिसाब से, हमने निकाल दिया इस क्वेश्चन को गलती से 3 बजे के हिसाब से, तो 4 5 6 7 4 घंटा होना चाहिए था ज़्यादा, माई अपॉलॉजी, 4 घंटा कम हो गया, इसमें 4 घंटा जोड़ दो तो 5:32 आ गया। 5:32 आंसर है ना सबका, क्लियर है, समझ में आया? तो गलती हो गई बट आंसर प्रोसेस सही है हमारा, मोटा मोटा सबको समझ में आ गया होगा। जिनको प्रॉब्लम है नो मैटर्स, चैप्टर को फिर शुरू से शुरू करेंगे एंड डिटेल्ड में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट डे। एंड अपना रूटीन याद रखेंगे आप एज वेल एज अदर थिंग्स। घर जाके जो मिला है तो दे जरूर देना।